निकालो साइंस का। हम सर ये पेपर सॉल्व कर ले। हाँ सर। आपका आप लोगों का कल किसका है? हिंदी। हिंदी सर का। हम तब तक पेपर कर लें। नहीं सर साइंस इसका है। अरे तू दे रे पैड मत दे। क्यों? चलो सुप्रिया क्यों सुप्रिया को इधर जाओ। किसका पेपर दिया था भाई। बस इसकी खाना ले ले बेंजीन आई Same kind of plants grown and cultivated on a large area is called क्रॉप। एक तरफ से बोलने दो, ठीक है? Now, Gaurav, the first step before growing crops is हाँ? क्या बोल रहे था? अभी पूछ रहा हूँ। That is the second fill in the blanks, okay? सर एक बार रिपीट कर हाँ। फर्स्ट एक घंटे की तो क्लास है बेटा, उसमें तुम इधर उधर बात करोगे, बात मत करो। That is the damaged seed wood. हाँ, आलोक. The damaged seed wood on the top of water. अरे यार आलोक से पूछो। ये लोग एक बार में समझते नहीं ना। Now, for growing a crop, sufficient sunlight and what is needed? वाटर हाँ, एंड सनलाइट वाटर एंड हाँ बोलो। न्यूट्रिएंट्स। Nutrients. खरीफ crop, cross करो। खरीफ क्रॉप पैडी मेज। रबी रबी। क्रॉप वीट ग्राम की। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ऑर्गेनिक मैन्योर एनिमल एक्सक्रीटा काउ डंग यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। Okay. Now, खरीफ crop के दो एग्जांपल दो। सर पैडी एंड रबी crop, सर wheat gram and maize. Sorry, wheat gram, wheat gram. and B. Sir groundnut. Linseed. Write a paragraph on preparation of soil. In the first step, preparation of the soil is take place with the help of plow. In the modern time, it can be done by tractor. It is followed by leveling the soil, which can done by a wooden leveler. Then Leveler. leveler. ठीक है. Sir, the leveling of soil. Now, second is sowing. Sowing के बारे में बोलते हैं। और थोड़ा समझ क्लियर नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? साफ साफ बोलो। sowing. इसके बारे में बताओ। sowing से तो क्या सोना है Sir. या क्या चीज़ है सोना है? sowing. sowing के बारे में बोलो। देखो पैराग्राफ में। सर ओके, प्रशांत। sowing. सर चारों बता देना। sowing. जो सोइंग का पैराग्राफ है उसी में देखो अभी कौन सा पेज खोले, वही खोलो ना। पार्ट ऑफ क्रॉप है ना। सोइंग के बारे में बीडिंग। आप बोलो शेर। सोइंग। चल। सर Sowing in a crop is made with the सर depth. आप बोलो। Sir, sowing is a process in which good seeds are sown in the soil and bad seeds are removed. We can see if the seeds are good or bad by an activity. Sir, वो activity लिख दो। सुनो, when the soil is prepared, now the next step is sowing of the seeds. ठीक है? So it can be sown with the help of seed drill. High quality seeds are to be sown and it is buried underground with a thin layer of soil. Okay? इतनी बात है. So sowing can be done either by seed drill. किसके द्वारा किया जा सकता है? Seed drill के द्वारा किया जा सकता है. ट्रांसप्लांटेशन और इतना ही कह सकते हैं. इट इज डन बाई, जैसे एक फनल होती है. सो बिफोर सोइंग सीड्स दीज आर केप्ट इन वाटर. द सीड्स विच आर ऑफ गुड क्वालिटी
they settle down at bottom. However, bad quality seeds, will float on float top of the water. such seeds will not germinate. So those which settle down at bottom, अगर अच्छा बीज है तो पानी में नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, जिसमें टोनोप्लास्ट होता है, जो अच्छे बीज होते हैं उनमें क्या होता है, टोनोप्लास्ट अगर अच्छा है तभी बीज होगा. ओके, अब जरा देखो, what does it mean by weeding? अविश, पैराग्राफ बोल रहे हैं ना. हाँ, Weeding is a process in which we cut unwanted plants which grown with crop. It is done by a chemical called Weedicide. weedicide, which is harmful. So we can use that. it is the removal of unwanted plants like गोखरू, और दूसरा कौन सा है, Grass. ग्रास, गोखरू, इन सब चीजों को हटाना है ना भाई. खुरपी से किया जा सकता है Sir, D to 4. और नहीं तो किससे किया जा सकता Sir, है, chemical. 2D4. देखो डब 2,4-D वीडीसाइड का क्या नाम दिया है, 2,4-D. It can be done by 2,4-D. It can be done. देखो इसके लिए weeds के रिमूवल के लिए तुम्हारे को कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स दिए गए हैं, that it can be removed with a hoe also. इसके द्वारा किया जा सकता है, hoe. Okay, now what is threshing? Threshing बोलो, 2-3 लाइन अपने मन से बोलो. रिद्धि, दिव्यांश, Sir, the removal of grain from shaft या फिर the bulk of plant is known as threshing. It can be done by machine called thresher. thresher or beating the crop on a stone. उसके द्वारा Separation of grain from chaff. separation of grains from chaff, it is known as threshing. तो अब कुछ चीजें लिखो कि ओके, पहली चीज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, खरीफ क्रॉप में क्या क्या आएगा, खरीफ क्रॉप that is paddy and maize. and maize. Second is rabi crop, Wheat, gram, wheat, gram, gram and tea. सर इसमें 2 ही लिखना है ना, बोला है. दो ही लिखना है. देखो, preparation of soil, urea and superphosphate. of soil, that is large crumbles are to be removed. बड़े बड़े ढेले हो जाते हैं, and by keeping the soil upside down so that the जो nutrients हैं वो replenish हो जाएं. So before sowing, it is the first step. Step of cultivation. In this, soil is made upside down. इसमें upside down किया जाएगा. Large crumbles are broken. जो क्रम्बल होते हैं ना, उनको तोड़ा जाएगा. तो हमें भी लिखना है. Are broken. अब बैठो तो लिख लो. Large crumbles are broken. और उसके बाद क्या किया जाएगा, and then soil को क्या किया जाएगा बताओ, लेवल किया जाएगा, With a leveler. Sir, a wood with a wooden leveler. लेवल, ठीक है. तो preparation, the equipments needed for preparation of soil is, पहला तो प्लो चाहिए और दूसरा क्या चाहिए बताओ, लेवलर. It needs एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स. इसके लिए क्या क्या चाहिए, तो प्लो चाहिए एंड लेवलर. दूसरी चीज दैट इज सोइंग. व्हेन soil is leveled, then by seed drill, good quality seed, are scattered
ऑन ग्राउंड एंड कवर्ड विद, और इसको किससे कवर कर देंगे? क्यों कवर कर देंगे? विद ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। नहीं तो चिड़िया ले जाएंगे सारे बीज। सर और सर ताकि सर वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स भी ले सकें। उसको मिट्टी से कवर नहीं करेंगे तो चिड़िया ले जाएंगी, तो इससे उसको क्या करना जरूरी है? कवर करना जरूरी है। तो सीड ड्रिल दिया गया है, सीड ड्रिल की मदद से हम क्या करेंगे? इट इज टू बी कवर्ड। नेक्स्ट देखिए, बीडिंग, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम, ठीक है, unwanted plants like grass, गोखरू, ये सब उगाते हैं, ठीक है। फ्रॉम फील्ड, फील्ड में से इन्हें हटाना पड़ेगा, इज कॉल्ड वीडिंग, इसको वीडिंग कहेंगे। इट कैन बी डन विद हो, वो आपके बुक में बना हुआ है, हो और खुरपी, खुरपी की मदद से। द केमिकल वीडिसाइड इज 2,4-D is also used for removal of weeds. Chemical weedicide, साइड का मतलब किलर होता है, वीड को किल करने वाला। वीडिसाइड 2,4-D, 2 के बाद कॉमा रहेगा। Can also be used for this purpose. Next is, जब ये काम हो जाएगा, then it is threshing. सर वहाँ पर वीडिसाइड के बाद कॉमा है। Weedicide 2,4-D is can also be used. Threshing क्या होगा? Sir, the removal Separation of grain grains from- to the staff separation is called Sir, removal और separation दोनों मिल सकता है हाँ या dividation? of grain from chaff, उसके होल से, grain from chaff is called threshing. It can be done either by beating the crop on ground, stone, पत्थर पे पटक पटक के भी कर सकते हो, या फिर क्या कंबाइन मशीन या थ्रेशर कुछ भी यूज कर सकते हो। सर बस ग्रेन से सर It can be done by thresher और कंबाइन। कंबाइन उसको हार्वेस्ट कर लेगा, काट लेगा, और काटने के बाद साथ में अलग भी कर लेगा, दोनों काम करेगा। Explain how fertilizers are different from manure. So, fertilizer and manure. So, how these are different? Question number 5. So, it is prepared in factory. जबकि मैन्योर कहाँ बनाया जाएगा? by cow dung. हाँ, it is prepared Sir, animal excrete. in सर field. इन फील्ड्स जो फील्ड है वहीं पर बना दिया जाएगा। सो इसके अलावा इट इज इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक नहीं है। और जबकि ये कैसा है? ऑर्गेनिक। क्योंकि प्लांट से, काऊ डंग से, इन सब से बनता है, यही सब तो ऑर्गेनिक होता है। जो ऑर्गन से केमिकल सर फर्टिलाइजर तो केमिकल इट इज ऑर्गेनिक। सर फर्टिलाइजर में आएगा कि वो लेस क्वांटिटी में यूज होता है, और इसमें आएगा कि इट इज ज़्यादा यूज्ड quantity। इन लेस क्वांटिटी, जबकि इट इज यूज्ड इन हैवी क्वांटिटी।
in large quantity. So Sir, manure. sir, fertilizer is less humus and manure use. It contains less humus. इसमें no humus, कोई humus होता ही नहीं है जब आप Sir, manure is rich in humus. सर कॉस्ट का भी आएगा. हाँ, और it contains humus. बहुत lot of humus है, पूरा humus ही है. Sir, सर कॉस्ट भी आएगा. Sir, manure friendly microscope. Yes, it is free of cost. It needs money to purchase it. It needs money to purchase it. So manure has high water holding capacity. Manure has large water holding capacity. जबकि It has less water holding capacity than manure. हाँ, इसकी कोई वो नहीं है, नो सच कैपेसिटी, क्योंकि केमिकल है ना. सर प्लांट न्यूट्रिशन इसमें रिच हो फर्टिलाइजर. इट इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक. ये कैसा है? Nutrients. जब तुम्हें फास्फोरस वाला चाहिए तो एनपीके डाल दो, नाइट्रोजन का चाहिए, जैसा जैसा चाहिए सबके अलग अलग आते हैं. तो ये कैसा है? जैसे पोटेशियम. एनपीके डालो अगर पोजीशन बचे. न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक. और इसमें तो पता नहीं क्या है या नहीं, तो गोबर है, डाल दिया, जो पता चले उसके भाग्य में होगा, मिल जाएगा. इट इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक. लेस न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि हमको ये थोड़ी कह सकते हैं गाय से कि ऐसा गोबर देना जिसमें पोटाश हो. सर वो तो गाय के ऊपर डिपेंड करता है. नहीं तो वो ऐसा ही होगा, कोई उसमें ये नहीं कह सकते कि वो न्यूट्रिएंट. फैक्ट्री में तो बना भी सकते हो, समझ आए. अब जैसे इसमें इसका एक एग्जांपल है एनपीके. नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये चीजें. और ये तो कुछ भी हो सकता है जो मेन्यूर बना हुआ है. ऐश भी तो हो सकता है ना मैंने. हैं? ऐश. ऐश हो सकता है. ऐसा कुछ लिखेंगे नहीं. ऐश काउ होगा. डंग. काउ डंग से जो बनती है वही ऐसी मैन्यूर. छोड़ दो. अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिख तो सर सकते. एग्जांपल में लिख देता गार्डन जैसे. वो तो कंपोस्ट है और वर्मी कंपोस्ट. क्या लिखोगे? सर मैन्यूर Compost. सॉइल को पोरस बनाता हाँ, कंपोस्ट एयरी एंड पोरस बनाता है, और ये ऐसा नहीं करता है. ऐसे बहुत सारे हमने लिखाए थे. कंपोस्ट एंड वर्मी. वर्मी कंपोस्ट. है. सॉइल का टेक्सचर भी इसमें ये इम्प्रूव करता है. मैन्यूर बहुत सारे हैं, 10-15 हैं, लिखते जाओगे तो. सर सो ठीक है. टेक्सचर अच्छा करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली है, ये सब लिख सकते हो. सॉइल को सस्टेन करता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है इसके, शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, ये सब लिख सकते हो. आगे देखो ना हो. हाँ वो हमने अभी जो बताया वो भी है ना लॉन्ग टर्म. उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, इसके शॉर्ट टर्म बेनिफिट है. नेक्स्ट देखो कि व्हाट इज इरिगेशन. The supply of water to the supply crops. of water in regular intervals किसको करेगा? वाटर टू फीड for crops. Sir, to the crop. क्रॉप. At a regular interval. Supplying of water to the crop at regular intervals. Regular interval of time is called. irrigation. Irrigation. For example लिख दो. Sir, Drip irrigation. and sprinkler irrigation. वो तो सर मॉडर्न हो सर. So which two methods are? Sir, ये modern है. मॉडर्न इरिगेशन. ड्रिप इरिगेशन और Sprinkler स्प्रिंकलर. irrigation. दोनों ही लिखने हैं. इनके बारे में भी लिखना है क्या सर? हाँ, इनके बारे में लिखना है कि ड्रिप इरिगेशन देखो इसमें Sir, कहाँ बना इसमें हुआ है. कम पानी यूज होता है. हाँ. तो सर, दोनों वो टेक्निकली ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज मॉडर्न irrigation system. It is modern technique. the water Which is directly near. ये which uses less water for irrigation. सर रूट पे ड्रॉप बाय ड्रॉप. हाँ.
इसमें क्या किया जाएगा? इन दिस देयर आर वेरियस नोजल्स आर फिटेड। बहुत सारे मैनी नोजल्स फिट किए जाएंगे। नोजल जानते हो ना, जिसमें से ड्रिप ड्रिप पानी आएगा। सर वो पानी के फव्वारे। आर फिटेड, फव्वारे वाला ड्रॉप बाय अलग है। ड्रॉप होगा। नोजल्स आर फिटेड वो स्प्रिंकलर टू लॉन्ग पाइप, which are connected to main. which एक लॉन्ग पाइप में बहुत सारे नोजल हैं, which ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, Falls Falls near the near root. हाँ, through nozzles। अब उन्हीं नोजल से क्या होगा? वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन रूट्स। Near the root. हाँ, ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर रूट्स। सर ये तो स्प्रिंकलर का होगा। स्प्रिंकलर में मोटर लगी रहेगी और उसमें क्या होगा कि एक परपेंडिकुलर बहुत सारे पाइप्स खड़े रहेंगे। वो तो सर सर डायरेक्ट वो तो में पानी स्प्रिंकलर में होगा। हाँ, अब स्प्रिंकलर दिखाएंगे ना। इसमें तो क्या है, पाइप ऐसे जा रहा है और जहाँ जहाँ पाइप जा रहा है उसमें यहाँ छेद कर दो तो ड्रॉप ड्रॉप गिराता रहेगा, और जहाँ जहाँ गिरेगा उसमें नोजल लगा दो, वहीं पे प्लांट है, ऐसे होगा। तो उससे इधर उधर पानी वेस्ट नहीं होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप। यहीं पे नोजल लगा दिया गया और अपना पाइप कहीं भी ले जाओ, जहाँ जहाँ रूट है बस वहीं पर एक छोटा सा छेद कर दो। छेद नहीं करना है तो नोजल लगा दो। नोजल लगा के बंद भी कर सकते हैं कि मान लो वहां से तुम्हारा पौधा मर गया तो नोजल बंद कर दिया, ऐसा भी हो जाता है। हो जाता है, एक्सेस ऑफ वाटर से भी मर जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कोई ये सिस्टम इतना परफेक्ट तो है नहीं। सर वो टूट सॉइल गया इरोजन। अब देखो, दैट इज द स्प्रिंकलर सिस्टम। जैसे जमीन लेवल ना हो तो उसके लिए क्या होगा? इफ ग्राउंड इस पहाड़ी क्षेत्रों में तो फव्वारा जैसे मैदानों पे नहीं फेंका जाता स्कूल के सर खेल स्कूल में। में भी हाँ। So if ground is not leveled, then this system is efficient. Efficient and saves water, और पानी बचाएगी। ठीक है? A long pipe, main pipe is connected to motor. हाँ ये लिखा है। And through which many smaller pipes are connected आपने लिखा perpendicular था many to the small pipes are connected through a main pipe. हाँ, 90 डिग्री पे खड़े रहेंगे। And at the end there again a nozzle is there. Nozzle होगा, वो क्या करेगा? Rotate होता है। करेगा। A long pipe is connected to pump. And many pipes are connected to this pipe. बुक में देखो जैसे स्प्रे हो रहा है ना, फुहारा फेंक रहा है, वही चीज है। आर कनेक्टेड टू दिस पाइप विच स्प्रिंकल्स द वाटर थ्रू आउट द फील्ड। वो क्या करेंगे? यूजिंग नोजल विच sprinkles water throughout field using nozzle। सिर्फ इतना पूछ रहे हैं जानने के लिए कि खरीफ की दो फसलें कौन कौन सी? और रवि की बताओ। देखने के लिए मेज कहाँ से बता रहे हो? ग्राम बीट नहीं बोलो। तो 20 ग्राम फी कॉटन ग्राउंड सही है, सोयाबीन। चलो। अगला देखो। Now, if wheat is sown in Kharif season, Mangal, what will happen? सर Sir, if wheat is sown in Kharif season,
wheat is a rabi crop. It does not needs much water if it is sown in rainy season. By it by will not the use cover of nutrients. excessive water, it will get spoiled. सही है. अब अगला देखो. तो 7. तो wheat is rabi crop. It needs, ठीक है, Less water. less water and cold climatic condition. If it is sown in kharif crop, खरीफ सीजन ठीक है, सीजन जिसको कि रेनी सीजन कहते हैं, then due to excess of rain and excess of temperature, The grain. it will not grow properly. ये ग्रो नहीं करेगी. Sir, the nutrients will not get proper. न्यूट्रिएंट से क्या लेना देना, न्यूट्रिएंट तो अभी ज़्यादा दे देंगे. इट विल नॉट ग्रो प्रॉपरली एंड अंडर एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन इट गेट स्पॉइल्ड. ज़्यादा एंड बारिश होगी तो भी खराब है. पानी में तो वही हो जाएगा. वो भी हो जाएगा. 2 बारिश में ही गेहूँ खराब हो जाता है, पीला पड़ जाता है. 2 ये तो पूरा बारिश ही होगी. गेहूं को बचा के रखना पड़ता है. So then under adverse climatic condition, wheat crop will get spoiled. Wheat crop will get spoiled. अगला देखिए. Explain how soil get affected by continuous plantation. Sir, हाँ बोलो. Sir, by continuous plantation, the soil will lose its all nutrients so that no more any crop can grow. And it will not get chance to replenish To its replenish nutrient. it. तुम क्रॉप पे क्रॉप उगाते चले गए, तो ये वही हाल हुआ जैसे शाहजहां ने मुमताज महल से 18 साल में 18 बच्चे पैदा कर दिए. अब वो मर गई है तुम्हें. हाँ sir. तो अब उसको तुम हेल्दी तो होने दो, अगला बच्चा पैदा करने से पहले तो तुम बच्चे ही सर पैदा हो. आपने बोला और फिर उससे फायदा क्या हुआ? उन्हीं एक बच्चे में से औरंगजेब ने उसको जेल में डाल दिया और उसके 3 बच्चों का सर दारा शिको और दारा शुजा सबका थाली पे सजा के भेंट कर दिया. उन्हीं 18 में से 3 को तो मार ही डाला औरंगजेब. सर आपने बोला था कि अगर वो 1-2 साल से ऐसे ही हट्टा कट्टा कर देता तो तैयार हो जाती. हाँ, पूरी 2 फौज क्रिकेट टीम बन जाती है. चलो नाउ अब जरा ध्यान दीजिए कि इफ वी कंटिन्यूअस प्लांटेशन हो, सो इफ वी कंटिन्यूअसली ग्रो क्रॉप, ठीक है, देन soil will not get a chance. Soil will not get a chance to replenish. ऐसा ही लिखना पड़ेगा. Its nutrients. And ultimately the soil वो होगी ना, loose will become infertile. ऐसा ही कैलिफोर्निया में और बहुत जगह अमेरिका में हो चुका है. एंड सॉइल विल वो रेत में बदल जाएंगे. सॉइल विल बिकम इनफर्टाइल, बंजर हो जाएगी. और सर इसमें तो इसलिए उसको बीच बीच में 2 महीने छोड़ना है. और सर फिर उसमें लेग्यूमिनस प्लांट्स लगा. हाँ वो भी लगा सकते हो. अगला देखिए कि क्वेश्चन नंबर 9. What are weeds? The unwanted
So unwanted Sir, plant which grow along with the main crop. हाँ in field So we can control it by Kurpi and along with main crop. weedicide. It is control. We can control it by weedicide. Called weed. देखो they compete, ये प्रतिस्पर्धा करते हैं. They compete with main crop for water and water, nutrients and space. तीनों चीजों के लिए उनसे प्रतिस्पर्धा करते हैं. Compete करते हैं. They compete with main crop for water, nutrients and space. So it is needed to be removed. So इसलिए इसको क्या करना है? It is to be removed. इसे क्या करना चाहिए? इसके द्वारा by using खुरपी, हो के द्वारा भी. और weedicide. by using खुरपी, खुरपी से तो बहुत एक ये कन्वेंशनल मेथड है, पुराना ट्रेडिशनल मेथड है. और खुरपी weedicides. को और वीडिसाइड एक नया मेथड है. सर weed एक तरह के सर parasite खुरपी और भी होते हैं. वो अलग-अलग होते हैं. वो में बिल्कुल आगे ऐसे होगा, हाँ सर, वो फ्लैट ऐसे खींच लो और खुरपी ऐसे ऐसे करनी पड़ेगी. उससे खींच लो, लंबी डंडी होगी, सीधा खींचोगे, ब्लेड होगा, बहुत फाइन ब्लेड होता है. सर ये वो जो होता है ना, देखो वो में ऐसा है, हाँ सर. अभी अगर- यहाँ से ऐसे फावड़ा. ये चीज है, हाँ. ये बिल्कुल खींच लेगा. सर और मीडी साइड 240. सर ये बॉडी जो करनी. Weeds, some weeds are gopru and grass. तो उसमें ये इसमें कुछ weeds हैं, ठीक है? सर ये एक तरह के सर पैरासाइट भी होते हैं सर, क्योंकि ये सर सिर्फ न्यूट्रिएंट्स लेते हैं इस तरीके से, उसके अंदर के nutrients। Grass and gopru. अगला देखो. Arrange the following boxes in proper order to make a flow chart. सर फ्लोइंग द फ्लूइड सर पहला Preparation of soil Preparation of soil development. development. So 10th is पहले आप क्या करोगे? Preparation of तो soil. 5th पहले है, 5th, सर फ्लोइंग द Soil फील्ड gas 6. सर फ्लोइंग द फील्ड 6 के बाद फिर Four. सर सोइंग Irrigation. सर नहीं सर सोई को Right. फोर Sir, 4 के बाद. फिर Four. 7. फिर 7. 100 कर लिया, फिर क्या करेंगे? 7. 7. Manure. सर एंड थर्ड फिर उसके बाद सर वन Second. Second. मैन्योर डाल दिया, फिर इरिगेशन, Yes sir. सर Harvesting. थर्ड फिर First हार्वेस्टिंग. of all, ठीक है? जैसे ही तुम मैन्योर डाल के पानी डालोगे वैसे ही वीड्स उगने लगेंगे. आपने खाद डाल दी, पानी डाल दिया, तो घास तो उगने में बहुत उसको मजा हो गया. नेक्स्ट देखिए, चैप्टर पे आओ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नाउ अब देखिए, श्रद्धा कुछ फिलिंग लाइन दिखाओ. Microorganism can be seen with the help of blue-green algae fits. सर बोलो. Blue-green algae fits क्या करते हैं? Directly from air and सही है. Alcohol is produced with help of. Cholera is caused by. Yeast is used in the production of. Alcohol बताएंगे इसमें. The following is antibiotic. सर ये आया था एग्जाम में क्वेश्चन. आ गया. हाँ सर. सर 5 क्वेश्चन तो पूछते हैं. अच्छा. बाहर गया. The following is antibiotic. सर अभी भी आते सर Carrier of malaria causing protozoa. सर ये भी आया. The most common carrier of communicable disease. सर हाउ The bread or idli dough rises because of. The process of conversion of sugar into alcohol is called. बहुत अच्छा. Bacteria
बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या करता है? Sir, ये तो हाँ, बोलो। Bacteria causing कॉलरा का है ना ये, और राइजोबियम, fixing nitrogen. लैक्टोबैसिलस, Setting of curd. यीस्ट, बताओ नहीं, In baking of bread. प्रोटोजोआ, Causing malaria. सही है, वही है जो प्रोटोजोआ उसका क्या नाम है? Plasmodium. प्लाज्मोडियम। वायरस, Causing AIDS. सही बता दिया। नाउ अगला देखो, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद naked eye? no sir. Microorganisms are so small that they cannot be seen with naked eye. We need हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? Microscope to see them. देखो, क्वेश्चन नंबर 4, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आपसे पूछा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में 4 चीजें हैं। एक तो Bacteria, virus, बैक्टीरिया, एल्गे, वायरस। सर 5 में 7 प्रोटोजोआ सर 7 है। और चौथा कौन सा है? सर वायरस, एल्गे, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ। फंगी, और कुछ लोग वायरस को भी डालते हैं। हाँ सर वायरस में भी डाल दीजिए। वायरस, तो ये जो चीजें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सो स्मॉल दैट दीज कैन नॉट बी सीन विद bacteria, fungi, protozoa and algae. 4 ही है ना, इसीलिए में सबसे लास्ट में वायरस है। मतलब कुछ ऑप्शन है बुक में पढ़ाया जा रहा है तो हम लोगों ने कहा दीज आर नाइदर लिविंग नॉट डेड, क्योंकि इनके पास साइटोप्लाज्म नहीं होता, इनके पास सिर्फ न्यूक्लियस होता है। So these are so small. इनको अविश ऑर्गेनिज्म भी नहीं कह सकते क्योंकि इनके पास सिर्फ न्यूक्लियस है। इनको सालों साल बंद कर दो लोहे के डिब्बे में और 200 डिग्री आग में डाल दो तब भी मरते नहीं, आग में भी तभी इनको ऑर्गेनिज्म नहीं कहा ना। So these are so small that these cannot be seen with naked eye. सर नॉर्मल Cannot see why. These cannot be seen with Naked naked eye. eye. We need microscope to See them. See them. see them. अब देखो, what are the major groups of microorganisms? Bacteria, algae, protozoa, fungi, virus. 4 ही लिखे ना, वायरस से लिखा हाँ 4 सर ही। वायरस नहीं बुक में पहले पेज में देखो 4 वायरस नहीं है। So main group of माइक्रो, अलग से बोर्ड में भी लिखे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, एल्गे तो जानते हो ना जो काई होती है, एंड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ सिंगल सेल वाले होते हैं, फंगी भी जानते हो। ईस्ट। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन फिक्स, बोलो। सर राइजोबियम, एजेक्टोबैक्टर और ग्लूबिन एल्गी। हाँ बिल्कुल। राइजोबियम, राइजोबियम की स्पेलिंग बताओ। R R R H I Z O B I U S R H I Z राइजोबियम। O और इसके अलावा एजोबैक्टर भी है। एजेड एजोबैक्टर, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये सर फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। सर वो एटमॉस्फेयर में जाके नाइट्रोजन में सॉइल। और ये पाए कहाँ जाते हैं? दीज आर फाउंड एट रूट नोड्यूल्स। सर गांठ है। हाँ, उसमें रूट नोड्यूल्स पे पाए जाएंगे, ठीक है। एंड ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स, जो लेग्यूम का मतलब दालों वाले पौधे। सर दाल, सर दाल बेज एंड दीज आर फाउंड इन फाउंड। तो ये जिनकी भी मैं बात कर रहा हूँ, कौन कौन से दो की बात कर रहा हूँ?
देख लो इसमें नोड्यूल्स हैं, ये काले हाँ काले। सर दिखाया है। हाँ सर दिखाया हुआ है। तो इन्हीं सब में ये पाए जाते हैं। ये लेगुमिनस दाल का पौधा है, अरहर की दाल। So these are found at root nodules of सर ये leguminous. काला कलर अरे रहता यहाँ पीसी राइजोबियम और एजोबैक्टर। अच्छा भाई तूने आज तक नहीं देखा? सर So- ये काला काला क्या है? इधर दिखाया है। These are found सर at बर्फ के बाल लगे हैं मेरे देखो सर क्या मैंने मारा सर दूर है root nodules. वो लाओ अमेजन से मंगाया गया है। सर दिखाओ ना सर। क्या है? सब चीज अमेजन में मिलती है आजकल। सर कहाँ से? सर पेड़ पौधे भी डिलीवर अरे ये अमेज़न से सर जंगल ये खड़े हुए चीजें भी डिलीवर कर रहे हैं। हम लोग जो अमेजोन देखते हैं ना वो सिर्फ इंडिया का देखते हैं। तुम लोग अमेजोन फ्रांस खोलो, उसमें इतनी इतनी चीजें हैं, सब चीज तुमको मिल जाएगी। क्या सर्च करें सर प्ले स्टोर में? सर कितना इम्पोर्ट ड्यूटी लगा? इम्पोर्ट ड्यूटी ऐसा नहीं 50 है, लाख। ये हमने अपने छत पे उगाया है। तो सर आप फ्रांस बोल रहे थे। फ्रांस हमारे छत सर, बहुत अगर सारे जो चीज- खंड है। सर अगर आप फ्रांस सर भैया सर अगर फ्रांस के उसमें जाके अगर सर हम लोग ने एक चीज ये सब है फ्रांस में। तो अगर सर हम लोग ने ऑर्डर कर दिया तो सर हमें एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा लेने के लिए। एयरपोर्ट पर नहीं, बस आई कार्ड दिखाना पड़ेगा आपको, अपना वेरिफिकेशन करना है और बस पैसा एडवांस देना है। जितने की चीज है उतना है, उससे ज्यादा आपका टैक्स लगेगा। तो एड रूट नोड्यूल्स ऑफ लिखो। सर जितने की चीजें उतना टैक्स लगेगा। एक्स्ट्रा नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट डबल है हाँ, सर बस इसमें तो नेमिंग का बोला है। कितना लिखना पड़ेगा? टाइप सर 10 एजोबैक्टर नहीं लिखे? एजोबैक्टर क्या लिखा है? जीटोबैक्टर, एजोबैक्टर है, और नाइट्रोसोमोनास और राइजोबियम। सिर्फ राइजोबियम नाइट्रोसोमोनास सर ये लिखा सर राइजोबियम सर सर एक बार गूगल में चेक कर लीजिए सर एजेक्टोबैक्टर हैं? एजेक्टोबैक्टर आप गूगल में चेक कर लीजिए। अरे बुक पे लिखा होगा ना पढ़ लेते बुक में पढ़ो क्या लिखा है, पता ही लिखा है सर। तो मैं देख लेता हूँ। सर राइजोबियम Spelling की बात तो करो। सर चलेगा सर स्पेलिंग की बात करो। राइजोबियम एजोबैक्टर, ये मेरे साथ से अभी सर देखो। मैं कहना चाह रहा हूं मतलब एग्जाम में ऐसा क्या है सर मतलब सर जैसे मैं सर राइजोबियम भी लिख सकते हैं राइजोबियम लिख सकते हैं वो भी लिखना पड़ेगा। जरूरी नेम ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। राइजोबियम एजोस्पाइरेलियम एजोटोबैक्टर लिखो। एजोटोबैक्टर को ठीक करो। ऐसा एजोटोबैक्टर तो बैक सर टी ओ आएगा। एजोटो BACTO ठीक है, बात नहीं करो। नेक्स्ट, राइट 10 यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सर सेटिंग ऑफ Setting सर of- सर एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया वो विनेगर। अब एक एक करके बताना है। जैसे यीस्ट है, सर मैं सर ये सेटिंग ऑफ सर वो मैं लिख रहा हूँ, उसको नोट करो। It looks- बताओ मत, इसको मैं लिख देता हूँ, उसको नोट करो। 37 आपने जो लिखा है तो सर वो उसमें लिख के आ गया। ठीक है। यूजफुलनेस प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो जो यीस्ट है वो किसके लिए है? सर यीस्ट इडली डोसा मेकिंग। इडली डोसा डो इन अरे बताया है सर ने। इसके लिए उसको क्या कहते हैं? दैट इज मेकिंग बैटर ऑफ ना, Yeast is used for making of batter of idli dosa sauce. मेकिंग बैटर लैक्टोबैसिलस इडली भटूरा। सर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया Bacillus is cut setting of cod. वही है। अरे ऐसे अच्छा बता दो क्या बस थैंक्स। अच्छा वो बता क्या रिलीज करते हैं दैट इज यूज्ड फॉर कर्डिंग ऑफ मिल्क। राइजोबियम आर यूज्ड फॉर सर सेटिंग ऑफ कर्ड और कर्डिंग ऑफ मिल्क सेम है ना? एक ही बात है, setting of cod। अगला सर वो भी देखो, डालेगा राइजोबियम आर यूज्ड फॉर एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया विनेगर वाला सर कुछ। एसिटोबैसिलस हाँ is used to make एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया is found Setting of cod. सर शायद Is found used- is अबे used ये नहीं अलग अलग
लैक्टोबैक्टीरिया देखो इससे पता नहीं चल रहा, अभी सेंटेंस को पूरा करो, पता नहीं चल पा रहा कि तुम्हें आता है कि नहीं। लैक्टोबैक्टीरिया अब बात तुम बहुत कर रहे हो लेकिन ये पता नहीं चल पाया मुझे, तुम्हें मालूम है कि नहीं। सर फॉर लैक्टोबैक्टीरिया मेकिंग is used For for making- making सर हाँ Vinegar. हाँ, तो इसलिए जो यहाँ बताया जाए उसको सुनो। So वो vinegar अंदर रखना चाहिए। विनेगर दिखा मैंने दिखाया था। Sir, rhizobium are used for fixing. सो राइजोबियम Bacteria is used for nitrogen for fixation. fixation of nitrogen. Nitrogen fixation. अरे इतना लंबा क्यों करता है? फेरिक नाइट्रोजन टू रूट नोड्यूल्स, जो जड़ों की गांठें होती हैं उसमें फिक्स करते हैं। और बोलो, अभी चार ही हुए हैं। सर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म Sir, bacteria is used. खाते भी आपने लिखवाया था एक बार। Sir, They decompose Sir, the these are used to decompose the dead animal and clean the environment. these decompose dead animal and kitchen waste, ये सबको किचन वेस्ट हो या प्लांट फार्म वेस्ट, इन सबको डिकम्पोज करते हैं। सर ठीक है? डिकम्पोज करने Sir, ये क्या कहते हैं? सर जो Microbes, good microbes are used to make antibiotics. बहुत Sir, अच्छा। एक चिल्ड्रन वाला किताब था। सर जो गुड माइक्रोब्स हैं उनसे क्या किया जाता है? एंटीबायोटिक्स सर जो ज्यादा हार्मफुल नहीं एंटीबायोटिक्स और होते सर वो एंटीसेप्टिक्स। सर जो ज्यादा हार्मफुल नहीं होते वो बचपन में चिल्ड्रन को लगाया था। वही पोलियो ड्रॉप इम्यूनाइजेशन के लिए भी यूज किए जाते हैं। हाँ जी सर माइक्रोब्स आर यूज्ड For एज एंटीबायोटिक ना, फॉर प्रिपेयरिंग मेकिंग। सर एंटीसेप्टिक्स भी तो होता है। अरे एंटीबायोटिक ऐसे नहीं बोलो, फिर कोई लिख के आ जाएगा फिर तुम्हारे ऊपर डालेगा, सब रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसे बोलना नहीं। सही है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसा इन्होंने बताया फॉर इम्यूनाइजेशन, सो या किसी भी एंटीडोट, किसी चीज को बनाने के लिए जो हमें वैक्सीनेशन के लिए ना, यस सो दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग वैक्सीन्स। और बोलो, अल्कोहल का नहीं बताया, सर मैंने बताया था तो उसको बताइए। बताया था दैट इज ईस्ट। ईस्ट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इसको फर्मेंटेशन या किण्वन की प्रक्रिया कहते हैं। फ्रॉम शुगर टू अल्कोहल, केन शुगर से अल्कोहल। the fermentation. ईस्ट से गन्ने की चीनी को या जो तुम गन्ने का जूस पीते हो उसको सड़ाया जाता है, उसको ग्राउंड के अंदर डाल के रखा और फिर उसको सर गुड़ गुड़ सर माल्टीज बनाया जाता है और मोलेसेस बनाया जाता है, गाढ़ा वो खांड नहीं बनती है। सर जैगरी सर जैगरी फिर जैगरी बन सकता है और फिर उसके बाद क्या बन जाएगा? अल्कोहल। शुगर तो ईस्ट इज यूज्ड फॉर मेकिंग अल्कोहल। किसके लिए? मेकिंग अल्कोहल फ्रॉम केन शुगर। सर शुगर के Sir, grape से भी तो बनाते शुगर केन फ्रॉम शुगर केन से बनाया जाता है बाय फर्मेंटेशन, किण्वन की प्रक्रिया। यही लिख देना सारे, ठीक है। अब देखो, देयर आर द 5 demerits, इनके 5 है। कई तो हमें बीमारियां भी हो जाती हैं। सर 8 ही तो है। ठीक है, बहुत ज्यादा है सर। यहाँ पर 10 लाइन बोला है। Sir, 10 के 10 10 हमने दिखा दिए। नाउ सी द demerits, या harmful effects of microorganisms। Sir, 5 हो गए। क्या Harmful effect of microorganisms. तो प्लाज्मोडियम क्या करता है? सर फंगी फूड खराब कर देता है। सर फूड ये एक पॉइजनिंग तरीके का Food प्रोटोजोआ हुआ है। कॉजेज Sir, मलेरिया सर माइक्रोऑर्गेनिज्म से सर वो भी होता है फूड पॉइजनिंग। सर फूड पॉइजनिंग और इसके अलावा फूड पॉइजनिंग। देखो, एक जो डेंगू वायरस है उसके द्वारा डेंगू फीवर होता है। यस सर। सर, सर वो फंगी एक फूड प्रोटोजोआ है। स्पॉइल कर देता है। डेंगू वायरस कॉजेस डेंगू फीवर, और इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्पॉइल Spoil our food. सर जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो ये वायरस नहीं आता है,
तो सब सेकंड जैसे ये प्रोटोजोआ हो गया, ये लिख देते हैं, इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा तो हम लोगों ने लिख दिया। याद ही हो जाएगा। उसके साथ साथ वायरस को अलग से नहीं पढ़ा तो जाता। इसमें पैराग्राफ बोले आप पॉइंट्स लिखो है। देखो, Paragraph में माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉजेस मेनी डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। ये ऐसा पॉइंट में माइक्रो रहेगा सही रहेगा, सबको दिक्कत नहीं होगी। और एक ऐसा भी होता है ना कि जैसे कोरोना वायरस कॉजेस, इट इज कोरोना या रेस्पिरेटरी डिसीज है ना, कोविड वायरस कॉज मैनी डिसीज, जैसे कोरोना वायरस या कोविड-19 वायरस, वो क्या करता है? सर रेस्पिरेटरी सिस्टम को सर खराब करता है। कॉजेस कोरोना, सर सेल्स को मरने पे मजबूर करता है। और जो हमारे अंदर HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कॉजेज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो सर वो तो सेल्स को खराब कर देते हैं। HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इससे क्या होता है? कॉजेज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम से अलग एक मार्क्स का ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। एड्स की भी AIDS। उस एड्स में क्या होता है, अगर किसी को छींक भी आ गई तो लोग पूछेंगे वो क्यों मर गया? अरे उसको थोड़ा सा उसने क्या किया था, ठंडा पानी पी लिया था, छींक आ के बेचारा मर गया, इतने में ही मर जाएगा। इम्यून सिस्टम पूरा चला जाता है बॉडी का। एड्स जरा सा तुमने कुछ भी ऐसा हो गया ना, जरा सा कुछ भी छींक आ गई या कुछ भी ऐसा हो गया, एक हल्का सा फीवर तो गया। सर वो सेल्स को ब्रेक डाउन करता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो इसकी वजह से ये हो जाता है। ओके, नाउ what are antibiotics? What precautions must be taken while taking it? सर मैं एक बताऊंगा। सर 3 बताऊं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? सर एंटीबायोटिक होते हैं, Antibiotics- The medicine which are used to stop the growth or kill the pathogen. हाँ, that is the medicine prepared by, किससे prepared होती हैं? By microorganism, good microorganism, मुझे लगा बनाते साइंटिस्ट हो and used to, किसके लिए? Used to kill pathogens। pathogens। तुम तो जानती हो, to kill pathogens। अब इसके लिए क्या क्या प्रिवेंटिव सर टेक फुल कोर्स, डू नॉट ओवरडोज और सर रेगुलर कोर्स। antibiotics are to be taken, सर फुल कोर्स Full course should be are to taken। be taken in full course। precaution should be taken by qualified doctor हाँ, or sir not to be taken overdose। it is to be taken after prescribed by Doctor. qualified doctor। क्वालिफाइड qualified doctor। It is not to be taken, क्या बता रही हो? Unnecessarily और सर overdose नहीं होना। overdose ही है। it is not to be taken। Unnecessary। अगर तुमको वायरल फीवर तो एंटीबायोटिक नहीं देना है। इन वायरल फीवर या वायरल डिसीज, इट इज नॉट टू बी टेकन अननेसेसरली। समझ में आ गई भाई? इतना ही रखो। अगर पढ़ना होगा ना, चैप्टर पढ़ना होगा उसमें समझा करें एक चैप्टर